A very good morning to everyone present today in this session of Paramash, where we all join as students to learn new things and to grow and to evolve into better persons. I would request the Ahmedabad branch to start us off with the ICI motto. य एषः सुप्तेषु जाग्रति य एषः सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामंशो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं ब्रह्मा तदब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः दोषः शतः सर्वे तदूना कश्चन कश्चन एतद्वैता 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 Now I would request the Vice Chairman of Ahmedabad branch of Vikasa, Mr. Jayaprakash Motwani, to give us all an address. Thank you, Khushi, and very good morning to all of you. Very happy Sunday. So, first of all, I really appreciate your efforts and your willingness to come here on very Sunday morning. Right, it's already 11:40, so it's not basically a morning, right? तो आज के सेशन की अगर बात करें, आज के सेशन का टॉपिक जैसे मैंने पढ़ा कि हाउ टू कंट्रोल योर आउटकम्स, राइट? तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि मेरे साथ भी मैंने भी ये फील किया है कि हमारे हाथ में जो होता है वो हमारे एफर्ट्स होते हैं, राइट? नॉट द आउटकम्स, बट कहीं जाके ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं बट वो आउटकम्स को रेगुलेट नहीं कर पाते। तो आज के सेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मतलब कि वो आउटकम्स नेसेसरी है, वो हर एक चीज़ के। जैसे आज एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी इश्यू होने वाला है, तो आई विश बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू जिनके एग्ज़ाम्स हैं नवंबर में। तो थैंक यू नेहा मैम to give us a precious time and be among us and sharing your views on such an important and unique topic. And I also welcome all of the students. And thank you, Kushi, for moderating this session. Yes. Yes, as you mentioned, today's topic is really unique. Locus of control. It's a psychological concept that refers to how people strongly believe that they have control over situations and experiences that affect their lives. Like if we think about it, it's such unique. And to reflect upon this topic, we have with us today Ms. Neha Chaudhary ma'am, who is a USA certified neuro-linguistic programming trainer, Access Bar trainer, founder of Yuva Unstoppable Surat chapter, where 2,000 volunteers work and adopted 25 municipal schools, gave NLP, leadership, creativity, mental health, professionalism, grooming, communication, and many more training in various corporate schools, colleges, and group of individuals, such as GLS, CSCA institutes, HP Kapadia, Shanti Junior School, Fabaway Getaways, Rotary Club Entrepreneurs, and many more. We are so lucky to have you today to reflect upon this topic. I would request our esteemed speaker, Ms. Neha Chaudhary ma'am, to continue this session. Okay. Very good morning to all of you. I'm Neha Chaudhary. फिलहाल के लिए इतना काफी है. To start the icebreaker, I want everyone video to be on. You know, there are only 12 students as I can see. So it could be really interesting and fun sessions because I always say जितने ज़्यादा कम लोग हो उतनी ज़्यादा मजा आती है. So I would request everyone to on their video so that I can start ice breaking session right now. It will be fun ice breaking. So please on your videos. Yeah, thank you so much, Parimal Parmar.
So it is a very small 12 group of people. तो मुझे नाम भी याद रहे कैसे generally I don't remember the names of any students इतना सब. हाँ, thank you Suresh. So I can talk to you personally. आपकी problem solve हो सकती है, personally सब कुछ हो सकता है. Okay, we'll start ice breaking session by asking you that which animal do you associate and why. आपको क्या लगता है आप कौन से एनिमल के जैसे हैं और क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आई फील दैट आई एम लाइक अ क्रोकोडाइल. सो आई एम वेरी लेजी, बट व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स आई ग्रैब इट. So I never miss my opportunities. So I'm like a crocodile. So I would ask Parimal, what are you like? Ma'am, I am from Saurashtra, so it's basically in our area, it's area of lions, so I associate with that. Associate Nice. with lion, yeah. And why? What is the quality you have? Yeah, so lion always is alert that what is happening around him, and is always aware that how he needs to do his work, so he'll be always prepared for that. Amazing, amazing. Suresh, your video was on, अभी off क्यों कर दिया? Yeah, see, कम लोग होने का ये फायदा और नुकसान दोनों है कि I can pronounce, like tell your name and बोल सकती हूँ कि मैं please on your videos. प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, इट विल बी नो फन अगर आप वीडियोस ऑन नहीं करोगे. अभी बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत कुछ कराना है, तो बिना वीडियो के तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है. थैंक यू अक्षत. कैन यू टेल मी अक्षत, विच एनिमल डू यू एसोसिएट एंड व्हाई? अक्षत, लोगों का नाम लेने से लोग चले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? अक्षत का Okay. नेटवर्क इशू होगा मैम, वो शायद रिमोट एरिया में रहता है इसलिए. अच्छा जय, आप बोलो, आप कौन से एनिमल को एसोसिएट करते हो और क्यों? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, इतना यूनिक है. आई गेस रैबिट शायद, क्योंकि क्यों? वो थोड़ा क्विक रहता है और मैं हमेशा एक्शंस डायनामिक क्विक रहता हूँ. हालांकि सोचे समझे बिना, बट ठीक है. नाइस नाइस. खुशी? I think a cat, because I'm very caring and affectionate towards the people who are close ones to me. So like a cat. Unique, unique. Okay, Divya, Jane, which animal do you associate and why? Divya, Jane, Yes, ma'am. which animal do you associate and why? सोचा नहीं है ऐसा कभी. सोचो, इतना टाइम इसीलिए दिया जा रहा है कि आपको क्या लगता है आप कौन से एनिमल की तरह हो? ओके, आप जब तक सोच रहे तब तक हर्षा बताएंगे. हर्षा? Yes, ma'am. हाँ. सोचा नहीं है, but as you said, so one thing came in my mind, like a peacock. Peacock का जो feather होता है ना, वो दिखाता है hope. मतलब there are more colors, colorful life with much more positivity. So I would like to, मतलब हाँ, I got it. I got it. much, yes. Okay, No, thank that's you. great, Harsha. Please, if possible, on your video. Yeah, Preksha, which animal do you associate and why? Preksha Jalalpuri. Please, I would request again everyone to on their video. हाँ, मेरे को पता है संडे मॉर्निंग है, किसी को कोई सेशन करने का मन नहीं है, पर मजा आएगी, ट्रस्ट मी. अगर आप वीडियो ऑन करेंगे मुझे भी मजा आएगी. नो प्रॉब्लम. अक्षत का मैसेज है, सॉरी फॉर पोर कनेक्शन. नो प्रॉब्लम. देवांशी, which animal do you associate and why? देवांशी कहाँ गई? किसी का नाम हाँ है मेरे को लगा वो भी भाग गई. सुमित माने. ओके, थोड़े बच्चे कम इंटरैक्टिव आई गेस यहाँ पे. जतिन सबनानी, आप लोग को आपके नाम नहीं पता या झूठे नाम लिखे हैं? सो यू नॉट रिस्पॉन्डिंग. इम्पॉसिबल मतलब. अक्षत, आपको क्या लगता है आप कौन से एनिमल जैसे हैं, क्यों?
मैं तो डॉग ही बोलूंगा मैम, लॉयल्टी। ओके, नाइस। ठीक है, और कोई? विनोद, ओ माय गॉड, विनोद, विनोद। मतलब दैट भी ओके, आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट। विनोद, कैन यू टेल मी? यहाँ पे किसी को बात नहीं करनी है, आई थिंक इट्स अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होगा अब कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आइस ब्रेकर से आगे बढ़ेंगे। शायद आप आगे जाके अपने वीडियोस ऑन करें, बिकॉज आगे ऐसी ऐसी चीज है कि आपको वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं होगा आपके पास। फाइन। सो लोकस ऑफ कंट्रोल है क्या? कोई मुझे बोल सकता है लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? एनीवन हियर? जीनल आचार्य, आपको क्या लगता है लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? जीनल, मुझे लगता है ये लोग ने कुछ ज्यादा ही सेशंस अटेंड कर ली, तो सब थक गए सेशन अटेंड करके, रिस्पॉन्ड ही नहीं है। मैम कैन आई आंसर? कौन है? ओ या श्योर दिव्या, थैंक यू। मैम जब ये टॉपिक मैंने सुना लाइक काफी यूनिक लगा एंड मैंने इस पे सर्च भी किया था, तो मतलब इतना पता चला कि लाइक हाउ यू रिएक्ट ओवर द सिचुएशंस। Nice, that's true. So basically, locus of control है the degree you believe you have control over your life. आपको कितना लगता है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है? बिकॉज आज भी अगर हमारे साथ कुछ होता है, हम बोलते हैं कि इसने नजर लगाई होगी, इसके कारण हुआ है, मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया होगा, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हम इजीली ब्लेम गेम खेलते हैं। सो ब्लेम गेम खेल के क्या आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में कि किसी और के हाथ में? सो बेसिकली लोकस ऑफ कंट्रोल है कि आपको पता हो कि आपकी लाइफ का रिमोट आपके हाथ में हो। इसमें सिर्फ दो ही चीज होती है, एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल मतलब वो लोग जो बोलते हैं कि मेरे कारण ये सब हुआ है, मैं मेरी वजह से फेल हुआ हूँ, ना कि इंस्टीट्यूट में पेपर हार्ड सेट किया है, मैं मेरी वजह से सीए बना हूं, कि ना कि मेरे फ्रेंड का कॉपी करके पास हुआ हूँ, या मैं मेरी वजह से है ना मुझे ये जॉब लगी है, ना कि है ना इसका रेफरेंस। तो एवरीथिंग यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली, कि सब कुछ मेरी, यू मेक थिंग्स हैपन, दैट इज इंटरनली, आप खुद पे विश्वास करते हैं। एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब थिंग्स हैपन टू यू, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा लिखा है, शायद भगवान को कोई पर्सनल दुश्मनी है मेरे से, हम ये सब वर्ड्स यूज करते हैं जब हम बहुत गुस्सा होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक विच इज राइट, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल? सागर राम रखयानी, Yes, ma'am. इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इज लाइट और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल? Internal look out control, ma'am. या अभी जतिन Yeah. ने भी लिखा है इंटरनल। अक्षत शाह, मैं Both. जरूर सुनना चाहूंगी, बोथ आर गुड, प्लीज इसमें कुछ बताइए बोथ आर गुड में। यस मैम, ऐसा होता है कि इफ मैं फेल हो गया हूँ एग्जाम में, अभी एग्जाम होगी, तो अगर मैं फेल होता हूँ तो हाँ, 2-3 दिन के लिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मैं आईसीआई को या किसी को मैं बोलूंगा कि ये आईसीआई ऐसा है, मेरे को हर बार फेल करता है, भगवान ने मेरी किस्मत बहुत फूटी हुई बनाई है, ये वो। फिर जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा तब पढ़ने के लिए मैं बैठूंगा, तब मैं खुद की गलतियां निकालूंगा कि हाँ मेरी ये गलती थी, इसके लिए मैं फेल हुआ हूँ, तब मैं अपने आप को इवेल्युएट करूंगा। तो तो आप एक बार में फ्रस्ट्रेशन निकालने के इतना लिए नहीं, पर आप में इतना समझ भी है कि अभी मैं एक्सटर्नली कर लेता हूँ, फिर मैं इंटरनली कर लूंगा, मतलब इतना माइंड भी वर्क करता है कि अभी मैं दूसरों को ब्लेम करता हूँ, जब नेक्स्ट एग्जाम आएगी तो खुद को ब्लेम कर लूंगा और खुद इंप्रूव। अरे पर मैम हाउ इज तब तो इवन दैट ये होता है ना, पॉसिबल? फेल होते हैं तो कुछ दिमाग नहीं चलता है कि हाँ जो भी है सब मेरे साथ ही गलत गलत हो रहा है, ऐसा ही चलता है। फिर जब वही तो शांति से दिमाग चलाने के लिए आई एम हियर। मैं आपको ऐसी टेक्निक्स दूंगी कि आप फेल भी हो जाओ तो भी आपका दिमाग चलेगा, तो भी आप बोलोगे इट्स बिकॉज ऑफ मी, और मेरी वजह से मैं फेल हुआ हूँ, और आगे जाके मैं अच्छे मार्क्स डेफिनेटली लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा, बिकॉज आई नो आई एम गुड। सो ये सेशन के बाद शायद आप ऐसा बोलोगे एग्जाम के बाद। हाँ मैम, मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल परीक्षा के हाथ में है। का लोकस ऑफ कंट्रोल परीक्षा के हाथ में है, किसके हाथ में? जो अभी करंटली ज्वाइन है ना परीक्षा। आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट यू। सॉरी मैम, सॉरी कोई बात नहीं। प्रेक्षा जबलपुरी।
Okay, who is she? I don't know. She is my girlfriend. Okay. Okay, हाँ ये external locus of control हटा दो. It should be always internal locus of control. तो can you see that external वो वाले locus of control के लिए आपके पास time है. Fine. So external all of locus of control looks like this. देखो, जैसे आप दूसरों के puppet हो ना, आप इंस्टीट्यूट का स्ट्रिंग है, इसमें मम्मी पापा का स्ट्रिंग है, इसमें सोसाइटी का स्ट्रिंग है, इसमें पास्ट का स्ट्रिंग है, इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्ट्रिंग्स है. तो आप मतलब एक पपेट हो कि उसके वजह से ऐसा हुआ, इसके वजह से वैसा हुआ, ऐसा हुआ. सो फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगी सबसे बड़ा होता है लोकस ऑफ कंट्रोल में लोगों का ओपिनियन, बिहेवियर एंड नेचर. आपको लगता है अगर सोसाइटी इसको गलत रिएक्ट करेगी तो ये गलत है. सोसाइटी ने रिएक्ट किया, मैं फेल हो गया तो मैं गलत हूँ. सोसाइटी के ओपिनियन, सोसाइटी क्या बोलती है, सोसाइटी कैसा बिहेव करती है. तो याद रखो सबसे पहली चीज, लोगों का तो काम है बोलना, लोग तो कहेंगे. ये चीज याद रखोगे, आपको कभी किसी से अफेक्ट नहीं होगा. ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे जो मैंने फोटो डाली है. एक पति पत्नी डोंकी के साथ कहीं जा रहे होते हैं, तो लोग बोलते हैं कितने बेवकूफ है, डोंकी के ऊपर बैठ के क्यों नहीं जा रहे. दोनों पति पत्नी फिर डोंकी के ऊपर बैठ के जाते हैं अगले दिन, तो लोग बोलते कितने क्रूअल है, डोंकी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं. फिर पति सोचता है चलो पत्नी को बिठा देता हूँ, तो फिर बोलते अरे लगता है इन दोनों में बॉस विमेन है इसलिए विमेन बैठी. फिर अगली बार पति सोचता है चलो मैं बैठ जाता हूँ, तो लोग बोलते कैसा पति है, अपनी वाइफ को चला रहा है और खुद बैठा है. फिर फाइनली वो लोग सोचते ठीक है हम गधा उठा के चाहते हैं, बस लास्ट ऑप्शन. तो लोग बोलते कितने बेवकूफ है, गधे को कौन उठा के जाता है, गधा उनको उठाने के लिए होना चाहिए. इन शॉर्ट आप जो भी करोगे लाइफ में, जो भी करोगे, आपके रिलेटिव, रिश्तेदार, बेटा ऐसा क्यों हुआ, बेटा वो क्यों हुआ, आपके फ्रेंड्स, तू ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्या करता है, आपके इंस्टीट्यूट, आपके टीचर्स, दे विल कीप ऑन सेइंग यू समथिंग और द अदर. लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना. सो प्लीज सबसे बड़ा एक्सटर्नल कंट्रोल होता है लोग. लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग. एप्ट एग्जाम्पल. यस दिव्या, थैंक यू. सो बोलते ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. तो एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव इन आवरसेल्व्स. हमें इतना अफेक्ट हो जाता है लोग क्या कहेंगे. आपके मम्मी पापा क्या, ठीक है मम्मी पापा तो फिर भी आउट ऑफ द जोन आते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, आपकी फैमिली क्या कहेगी, आपके टीचर्स क्या कहेंगे, आपका मजाक बन जाएगा, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने इज्जत क्या रह जाएगी. यू नो, जस्ट कट दिस क्रैब. अगर आप जिस दिन विश्वास कर लोगे कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप बिल्कुल और बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगे. यस सागर, यू वांट टू से समथिंग. नो मैम, वो भाई मुझे प्रेशर कर रहा हूँ. Okay, Divya, apt example. Yes, Divya. ICA student, I'm in the zone called IDGAF. I want to know that what is the zone. ICAI. ये किसने मैसेज किया मुझे. ICAI student to everyone. I'm in the zone called IDGAF. अच्छा, oh no, I realized right now. Okay, fine, I got it. ठीक है. ये हो गया. इसके बाद मैं चाहती हूँ कि सब एक पेन और पेपर लाएं. सब लोग जस्ट गेट अ पेन एंड पेपर. हाँ, आपको वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा, मैंने आपको बोला था. आपको अगर एक्टिविटीज करनी है, मेरे साथ सीखना है, नहीं सीखना कोई बात नहीं, आपकी मर्जी. सीखना है तो एक पेन और पेपर लाओ फटाफट. एवरीवन प्लीज गेट अ पेन एंड पेपर एंड ऑन योर वीडियोस. मैं देखूंगी नहीं तो मैं एक्टिविटी कैसे बताऊंगी. I request all the students to on your video to do the activity. Harsha brought, okay. Harsha ले आए हैं, अक्षत ले आए हैं. जय, show your pen and paper. Yeah, जय ले आए हैं. Divya, Jane, done, okay. Preksha, can I see pen and paper? खुशी, okay. Preksha ले आए हैं. Jinal, can I see pen and paper? Jinal, your video is like stop हो गया. हाँ, Jinal, show me a pen and paper. Jatin has got pen and paper. खुशी,
नाउ लाइक गुड स्टूडेंट्स, मैंने बोला था आपको ऑन करना ही पड़ेगा, बहुत सारी एक्टिविटी, नहीं सीखना तो चले जाओ, मुझे भी सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है संडे को। स्पेशली दे हैव अलॉटेड मी दिस टाइम बिकॉज आई वाज नॉट टेकिंग 8:30 to 9:30। एक महीने बाद आई वाज लाइक ओके फाइन, आई एम टेकिंग इट। तो ये सिर्फ आपके लिए मैं आई हूँ एक्टिविटीज कराने, आपको बताने की होता क्या है। प्रेक्षा ठीक है, जीनल, प्रेक्षा, खुशी and Jay, Parimal has got pen and paper. Everyone else, please on your video to show me. ठीक है, I want every one of you to write every damn thing जो आज तक आपको अफेक्ट की किसी के कहने से, उसके नाम के साथ। इसने मुझे ये बोला था, इसने मेरे को अंडर एस्टिमेट किया था, मेरी फैमिली ने, रिश्तेदार ने मुझे ये पूछा। राइट एवरी डैम थिंग। मेरे को नहीं पढ़ना है, ना किसी को पढ़ाना है, चिंता मत करो, ये आपके लिए है। ना कोई पढ़ेगा और ना आपको किसी को पढ़ाना है। जितना गुस्सा है ना, सब लिख डालो। आई एम गिविंग यू 2 minutes। जब लिखे तो प्लीज रेज योर हैंड एंड, या फिर आप लिख सकते हो डन। Just write every damn thing. प्रेक्षा तो बेचारे दिखा के, प्रेक्षा वी डोंट वांट टू सी। प्रेक्षा आपने ना कैमरा उसमें रख रखा है। हाँ, वी डोंट वांट टू सी व्हाट यू आर राइटिंग। आप कैमरा अपने तरफ घुमा सकते हैं, अपने फेस के तरफ। या प्लीज राइट, खुशी प्लीज राइट, आपको भी करना है सब। एवरी सिंगल नेम दैट अफेक्ट्स यू, एवरी सिंगल नेम जिसने आप पे भरोसा नहीं किया है, जिसने आपके बारे में बुरा बुरा बोला है, जिसने आपको कभी समझा नहीं। थैंक यू दिव्या। एवरी सिंगल थिंग। ये टाइम इतना कम है, मैं कोई हाल में टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकती। हर्षा डन। ओके, गुड हर्षा। अक्षर डन। ओके, जतिन डन। ओके, किसी ने बोला कि नॉट सो गुड टू लुकिंग, इसलिए वीडियो ऑन नहीं किया क्योंकि गुड लुकिंग। किसने बोला आपको कि आप गुड लुकिंग नहीं हो? मतलब हु हैज डिसाइडेड दिस फॉर यू? अगेन दिस इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। किसी ने आपको बोला है कुछ? बिलीव इन योरसेल्फ। गुड लुकिंग होता क्या है? आप इंसान दिख रहे हो, बहुत काफी है। आई एम जस्ट नॉट मेंशनिंग द नेम, बट गुड लुकिंग क्या होता है? इंसान ही हो ना, दैट्स मोर देन इनफ। देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड लुकिंग, फेयर, dark. There's nothing called. You are a human being. That's more than enough. Just be a good human being in life. Yes, ma'am. She is. Okay. Ma'am, till now names are more and papers are less. Okay, Harsha. ज्यादा ही लोगों ने आपको कुछ कुछ बोला है। मजा तब आती है जब you don't get affected. You know, I'll tell you how to respond. आपको कोई कुछ बोले ना तो बोलने का सही बात है, गुड गोइंग, सही बात है, एकदम सही, जस्ट गो। सामने वाला भी सोचता रह जाएगा, अरे इसने लड़ाई नहीं की, इसने तो कुछ नहीं किया। So that's the technique. You know why? Let them piss you off. Piss them off. कोई आपका एंगर कैसे बाहर आ सकता है? आपका रिएक्शन कैसे आ सकता है? आपको बोलना चाहिए एकदम सही बोला है, गुड गोइंग, सही जा रहे हो। So this is one of the technique how to handle. I do it often. I say okay. Okay. I say okay. मेरा ये टेक्निक है। Okay is the word for me. Okay, now take this paper in your hand. Everybody वो बुक से फाड़ दो पेपर। हमको मेमोरी तो रखनी नहीं ना, फालतू मेमोरीज। तो बुक से फाड़ो वो पेपर। Just remove that paper from the book. Yeah, keep it in your hand.
Everyone, please do that because I can't see you. So I would request everyone to do that. Believe in yourself and you can on your videos. It's okay. Yeah. And now close your eyes, every one of you. Close your eyes and just इतने टुकड़े करो उस पेपर के जितने टुकड़े आपको मिले भी नहीं. Just tear it. Yeah, Vinod, we can hear your tearing it. During your paper, आपका unmute हो गया. So just फाड़ दो उस पेपर को. And you don't really care now. What they said, everything is deleted, everything is erased. Now you are on your own. आप अपने पे विश्वास करते हैं, अपने हिसाब से लाइफ जिएंगे, आपको जो सही लगता है आप वो करेंगे. There will be totally internal locus of control. That's good. Okay. So now the second point is victim card. ये लोग बहुत लोग खेलते हैं. You know, circumstances, यार मेरी तो situation ही ऐसी है, यार मेरे तो माँ बाप ही ऐसे हैं, यार मुझे तो ऐसा पाला गया है, यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है. तो people have playing game that is called victim card play करते हैं. तो remember that victim card is expired in your life. बहुत पुराना हो चुका है. To stop playing and stop blaming your circumstances for everything. कि मेरे को तो बचपन से ही ऐसा रखा गया है, मेरे साथ तो पता नहीं कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है. तो स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड. थर्ड इज रिलेशनशिप, लायबिलिटी और असेट. ये आप लोग की एज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यू ऑल मस्ट हैव सम रिलेशनशिप. किसी किसी का होगा, किसी किसी का नहीं होगा. योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, योर मॉम डैड, योर फ्रेंड्स, बट मेजरली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. अगर वो एक लायबिलिटी, आपको ऑब्लिगेशन लगता है हर चीज में, यार मैं कैसे बोलूं, यार मैं क्या करूं, यार कुछ समझती नहीं, कुछ समझता नहीं, तो दैट इज नॉट अ रिलेशनशिप. ग्रो अप. प्यार 10 बार भी होता है, ट्रस्ट मी. ऐसा कुछ नहीं है प्यार एक ही बार होता है. ये कंसेप्ट गलत है, सरासर गलत. जिसको लगता है ना एक ही बार प्यार होता है मैम लाइफ में, चाहे वो मेरे को कुछ भी करे, मार भी डाले, जहर भी दे दे तो भी, तो तुम बेवकूफ हो. This is the age to become a बेवकूफ. So judge your relationship is asset or liability. अगर वो relationship आपकी growth में ध्यान दे रही है, आपकी पढ़ाई में ध्यान दे रही है, आपके एग्जाम्स में ध्यान दे रहे हैं, हाँ भाई यू शुड ग्रो इन योर लाइफ, आपके जॉब करियर में ध्यान दे रहे हैं, दैट इज अ रिलेशनशिप, दैट इज एन असेट. कोई भी लायबिलिटी हो ना, चाहे फ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, प्लीज उससे 1 हैंड डिस्टेंस रखो. जिससे भी मिलके आपका दिमाग खराब होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको जबरदस्ती कुछ करना पड़ता है उनके लिए, प्लीज एंड प्लीज कीप 1 हैंड डिस्टेंस विद देम. आई रिक्वेस्ट यू. 10 बार क्या 50 बार भी प्यार होगा, सच में होगा. एक बार हटके तो देखो यहाँ से, और बेटर होगा हर बार, क्योंकि हर बार आप इंसान को जज बेटर कर पाओगे. इसका मतलब ये नहीं मैम ने बोले 1000 बार होगा तो चल अब तू जा, आई ट्राई नेक्स्ट. इफ इट्स गुड रिलेशन, स्टिक विद इट. इफ इट्स बैड, इफ इट्स अनहेल्दी, इफ इट्स मेकिंग यू क्राई डेली, वो रिलेशनशिप है ही नहीं. दैट इज फेक. सो प्लीज एंड प्लीज टेक केयर कि आपका रिलेशनशिप एक लायबिलिटी है, ये असेट है. आप खुद ही जज कर सकते हैं और कोई आपके लिए जज नहीं कर सकता. फोर्थ इज, ये बहुत अच्छा है, पास्ट. आई कांट गेट ओवर माई पास्ट. मेरी जिंदगी खराब की है उसने, मैं कभी नहीं भूलूंगी या भूलूंगा. मेरे साथ ऐसा किया था इस रिश्तेदार ने, उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा एक दिन. मेरे साथ इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है, इंस्टीट्यूट को तो मैं बताऊंगा जब मैं सीए बन के मैं चेयरमैन. गुड, वेल डन. सो प्लीज एवरी वन ऑफ यू गेट अ बॉटल जो भरी हुई ऊपर तक. विल डू वन एक्टिविटी फॉर द पास्ट. गेट अ बॉटल. थैंक यू धनेश्वर फॉर ऑनिंग लाइक कीपिंग योर वीडियो ऑन. प्लीज गेट अ बॉटल फटाफट सब लोग. टाइम ही नहीं है. इट्स ओनली आई गेस 15 मिनट्स लेफ्ट. विल एक्सटेंड टिल 20-25 मिनट्स. प्लीज गेट अ बॉटल. जल्दी एक वाटर बॉटल और मुझे दिखा दो खाली स्क्रीन में आप लेके आए हो. या धनेश्वर हैज गॉट द बॉटल. पूरी ऊपर तक भरी होनी चाहिए. हर्षा, ओके, हर्षा हैज गॉट द बॉटल. और परिमल परमार हैज गॉट. थैंक यू परिमल परमार.
Akshat Shah has got the bottle. Okay. Jatin has got. Sagar has got. Hitesh has got. Binod has got. Khushi has got. Divya has got. Okay. Joy Motwani has got. Jinal has got. Great, that's great. Fine. So आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं. अरे मेरी बॉटल कहाँ है? मेरी बॉटल थोड़ी दूर है. Just give me 1 second. जय नाम चेंज कर दे जल्दी. प्रोनाउंसिएशन चेंज करने को. Joy. You know मजा आता है ना कोई 1 सेकंड के लिए भी मैम इधर उधर तो फटाफट we should talk. बट कैसे है ये वर्चुअल है तो मेरा ऑन ही रहता है माइक. आगे के लिए भी बता रहे हो तुम किसी और के सामने करो तो मैं तो चलो फाइन. सो हियर इज योर बॉटल एंड आप सबको वीडियो ऑन करोगे तो मुझे दिखेगा ये कंपटीशन कौन है कौन नहीं है कौन क्या कर रहा है वरना मुझे कुछ समझ नहीं आने वाला है. प्लीज इसमें तो वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा आप सबको. आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट every one of you right now. Yeah, thank you Jatin. Finally Jinal, thank you. So please on your videos so that I can see what you're doing. Great. So आप सबको बॉटल पकड़नी है. ये हाथ स्ट्रेट होना चाहिए. ऐसे बॉटल पकड़नी है. आप हैंड चेंज नहीं कर सकते. आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते. आप नीचे सपोर्ट नहीं ले सकते. ऐसे नीचे कोई रखा हो कुछ सपोर्ट नहीं. आपको वन हैंड से ऐसे बॉटल. ओके जिसका मैं वीडियो देख सकती हूँ मैं उसी को कंसीडर कर सकती हूँ. बाकी चीटिंग कर रहे हो तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा. फाइन लेट्स सी. जो स्टार्ट प्लीज होल्ड योर बॉटल्स. सो जो ड्रॉप कर देगा बॉटल प्लीज लेट मी नो डिड यू ड्रॉप इट. ओके स्टार्ट. लेट्स सी हु ड्रॉप्स द बॉटल. जिसके वीडियो ऑन है वो तो सब एकदम I mean, I can see them. मोबाइल ड्रॉप हो जाए लैपटॉप ड्रॉप हो जाए बॉटल नहीं होगी इनकी. ओके फाइन. स्टिल एवरीवन इज होल्डिंग एंड जिसकी वीडियो ऑन नहीं आप चीटिंग कर रहे हो तो आपकी मर्जी आपकी दुनिया. ओके सो जो भी प्लीज बॉटल रख दे लिख देना ड्रॉप्ड. आई शुड नो यू हैव ड्रॉप द बॉटल. ओके 19 लोग अभी तक किसी ने बॉटल ड्रॉप नहीं की है. फाइन ठीक है. कितनी देर तक पकड़ते मैं भी देखती हूँ. लेट्स सी. ओके उत्सवी कैन आई सी योर बॉटल. यू हैव ड्रॉप्ड. ओके उत्सवी हैज ड्रॉप्ड द बॉटल. Divya has dropped the bottle. I can see it. Okay. Hitesh dropped the bottle. अक्षत ने वीडियो ऑफ कर दी चीटिंग करने के लिए. Joy has dropped the bottle. अक्षत has dropped the bottle. मैम मेरा नाम जय है. अच्छा ओके फाइन जय. इसलिए बोला था आप वो नाम चेंज कर दो. Okay. Still people are holding, huh? My God. ये कैसा बैच है? Fine. There are so many people still holding. I am not understanding. ए position change नहीं कर सकते धनेश्वर. हाँ, don't change the position. No cheating. Jatin has dropped the bottle. Oh my God, still they are holding. Preksha has dropped the bottle. Parimal has dropped the bottle. मैम खुशी के हाथ में तो खाली बॉटल है. भारी हुई है बहुत भारी है. How she's holding, I don't know. चिल्ला के सबको स्किन बता दिया तूने. भारी हुई है भारी है. Okay, fine. Don't worry. I trust everyone. Divya Jain, I got the concept behind the exercise. Okay, Divya, that's good. Okay, everyone of you drop the bottle. तुम लोग तो 1 घंटा तक पकड़े रहोगे मेरा सेशन खत्म हो जाएगा.
Fine, Divya Jain. Can you tell us what did you get from this concept? ये exercise मैंने क्यों कराई थी? मैम कितने टाइम तक तुम पास्ट को अपने लाइक दिमाग में रखते हो, जितना जल्दी हो उतना से भूल जाना चाहिए, so you can move on in your life. तो ये एक्सरसाइज से कैसे कनेक्टेड है? लाइक हमने बॉटल कितनी देर तक होल्ड किया, वो चीज को कितनी देर तक हमने रखा है अभी तक अपने मन में. ओके फाइन. आप अगर एक बॉटल को 5-10 मिनट भी होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपको फिजिकल पेन हुआ है, यू नो फिजिकल पेन बहुत विजिबल है. थैंक यू जेएस फॉर कीपिंग योर वीडियो ऑन. तो फिजिकल पेन बहुत इजीली हमको महसूस हो जाता है, तो हमने 5-10 मिनट में बॉटल ड्रॉप कर दिया जस्ट बिकॉज हमें पेन नहीं होना चाहिए. अगर मैं और 10 मिनट रुकती तो सब ड्रॉप कर ही देते, लेकिन आपके हैंड में ऑलरेडी पेन हो ही रहा होगा बहुत लोगों के हाथ में थोड़ा थोड़ा कि या मैम तभी आप लोग ने ड्रॉप किया है, वरना तो आप ड्रॉप करने से वाले में से हो भी नहीं. तो आप मुझे ये बताओ, क्या मैंने आपको बोला था कि आपका कंपटीशन है, जो जीतेगा उसको मैं विनर डिक्लेयर करूंगी? डिड आई से दैट? मैंने बोला होल्ड योर बॉटल, आप सब लोग होल्ड करने लग गए. देयर वाज एनी रीजन बिहाइंड इट? होल्ड करना क्या नेसेसरी था? आप चाहते तो विद इन अ सेकेंड रख सकते थे, लेकिन नहीं, यू चोज टू होल्ड, यू चूज द पेन. तो आप सबने पेन चूज किया, और जब तक आपको पेन नहीं हुआ तब तक आपने होल्ड किया. एंड ये फिजिकल पेन था, इसलिए आपने ड्रॉप कर दिया. व्हाट अबाउट दोज मेंटल पेन यू आर कैरिंग इन योर हेड पास्ट का? कितना मेंटल पेन आपके दिमाग में, इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मेरे साथ ये किया था, उसने उस 26 नवंबर को रात को 2 बजे मेरे पास फोन आया था एंड इट हैपेंड. व्हाट? आपको पता नहीं आपके दिमाग को कितना दर्द हो रहा है. इट्स पेनिंग, यू डोंट इवन रियलाइज इट, क्योंकि मेंटल पेन रियलाइज नहीं होता है. एंड कब वो डिप्रेशन में टर्न हो जाता है, कब एंजाइटी में टर्न हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है. तो प्लीज एंड प्लीज, आपने जैसे बॉटल ड्रॉप की है, प्रॉमिस मी टुडे एंड राइट नाउ यू विल ड्रॉप एवरी पास्ट फालतू चीजें फ्रॉम योर लाइफ. जैसे ये बॉटल होल्ड करना फालतू था, खुशी स्टिल डूइंग दिस. इट वाज नो यूज. इमेजिन 10 मिनट में इतना पेन हो रहा है. आप 10 दिन, 10 साल, कितने 10 महीने, कितने टाइम से आप लोग ने दिमाग के में ना चीजें रख रखी है, आपका हेड कितना पेन हो रहा होगा. इमेजिन इफ यू ड्रॉप दैट, वो कितना रिलैक्स फील करेगा. So tell me, are you ready to drop it right now? Everything from your past, every bad thing from your past. Raise your hand. Ma'am, I Yeah. just have a question. Thank you so much. Okay, who has a question? I Me, don't. Jay. Jay. Yeah. Yes, like, is everything necessary to drop? Like, if I give an example, suppose if I'm holding a mobile to watch your lecture, right? I don't have something to put my mobile on. So your lecture is equally important, right? So though my hand is paining, but I still hold the mobile just because your lecture is important. So something in life must be that important that we should hold it on. If it's for good, then hold it. Why not? आपको लेक्चर बेनिफिट करेगा. आपका दिमाग इतना पता होना चाहिए आपके लिए क्या बेनिफिट है. क्या मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला अच्छी चीजों को ड्रॉप करो. बॉटल पकड़ना फालतू था. वैसे सारी नेगेटिविटी, सारे गंदे कमेंट्स, सारी बुराइयां आपकी जो लोगों ने की, वो सब फालतू है. उसको ड्रॉप करो. अच्छे मेमोरीज को तो कौन ड्रॉप करता है? दैट गिव्स अस मोटिवेशन टू मूव फॉरवर्ड. सो जो भी बुरी चीजें है, फालतू चीज है, जो यूजलेस है, उन सबको ड्रॉप करना है. इफ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, होल्ड इट. इफ इट गिव्स यू मोटिवेशन, होल्ड इट. ठीक है. सो एवरीवन इज रेडी टू होल्ड द बॉटल. Hold the bottle, remove the past and drop all the thoughts from the past, bad thoughts, wrong thoughts, negative thoughts. Thank you so much for doing this ahsan on yourself. Okay. And the last external locus of control is past. Money. Actually, इतने chat आ रहे हैं ना, कि मेरे को खुद को फोकस करने में प्रॉब्लम जा रही है कि है ना, ये चैट्स पढ़ूं या मैं आपके. प्लीज, आई विल टेक योर क्वेश्चंस. लेट मी डू दिस सेशन, देन आई कैन टेक योर क्वेश्चन. और जिसको भी ऑन द स्पॉट क्वेश्चन है, जैसे जय ने बोला, मैम यू कैन डू दैट सो दैट आई कैन आंसर यू. आप चैट्स करेंगे तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही मेरे स्क्रीन में क्या हो रहा है. फाइन. सो लास्ट एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है मनी. किसको लगता है पैसा सब कुछ है? प्लीज रेज योर हैंड. सब कुछ? पैसा ही सब कुछ है? सब कुछ तो नहीं है, पर पैसा है तो बहुत कुछ है. That's nice. Agree.
दैट्स नाइस। अगर इसमें से किसी को भी ऐसा नहीं लगता पैसा सब कुछ है, बिकॉज सम पीपल गो विद दिस थिंग कि पैसा ही सब कुछ है लाइफ में, पैसा ही कमाना है। पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। वेरी वेरी वेल सेड अक्षत। तो अगर ये इंसान को रियलाइज हो जाए कि मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे बड़ा आदमी भी बनना है, देन इट्स गुड। मुझे बड़ा आदमी ही बनना है, मुझे पैसा ही कमाना है लाइफ में, तो आपकी जो प्रायोरिटीज, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स है, आपके खुद के इंटरेस्ट है लाइफ में, आपके पैशन है, एवरीथिंग यू लिव बिहाइंड। बट एट लास्ट व्हाई आर यू लिविंग? आप जी क्यों रहे हो? आप कब मर जाओगे, कल मर जाओगे, परसों मर जाओगे, कुछ आपका भरोसा ही नहीं है, और आपने वो ही नहीं किया जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर क्या फायदा? तो ऑफ कोर्स थ्राइव फॉर योर गोल, डू बेस्ट इन योर लाइफ, लेकिन उसके साथ साथ चीजों को लेके चलो जो आपके साथ इंजॉय कर सको, जो इस मोमेंट में जी सको। ओके, सो व्हाट इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल? एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल तो मैंने बता दिया, लोग है, पैसा है, पास्ट है, आपके रिलेशनशिप है, विक्टिम कार्ड है। बट व्हाट इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कब बढ़ता है? जब आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, तो आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है। आप अपने आप पे भरोसा करने लग जाते हैं, अपने आप पे हर चीज अपने आप पे डालने लग जाते हैं। मैं सबको एक टेक्निक देती हूँ विल पावर बढ़ाने की। आप विल पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? किसको किसको लगता है उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है? प्लीज रेज योर हैंड। किसको किसको लगता है दे हैव अ गुड विल? कोई हाथ ही नहीं उठाता, सबको लगता है मैम बहुत क्वेश्चन करेगी। हाँ खुशी, आपको लगता है आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है? अगर आपने कुछ ठाना है तो आप करके रहते हो without getting affected by people, by opinions, by surroundings. Okay, जो कर बाकियों को नहीं हाँ लगता तो बाकियों के लिए टेक्निक दे देते हैं। मैम हाँ हाँ जय ने बोला एक्चुअली, एक तो तुम मैम। ओके, किसने बोला मैम? हाँ मैम, मैंने बोला सागर। हाँ सागर बोलो। हाँ मैम, फाइनेंशियली में ऐसा कुछ नहीं होता है, पर कभी कभी इमोशनली में ना तो फिर होता है ऐसा। कैसा? भाई मतलब भाई जो सामने का कोई और कुछ बोले तो फिर उसमें उसकी वजह से इफेक्ट होता है। ये वही है ना जिसकी गर्लफ्रेंड है? सॉरी सागर वही है ना जिसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ मैम। हाँ है ना? तो वही वो तुम्हारी सुई वही अटकी है स्टार्टिंग से। तो मैंने हाँ। क्या लिखा था? रिलेशनशिप लायबिलिटी और असेट। अगर असेट है तो फिर फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। लायबिलिटी अगर वो यहीं पे है तो आई एम सॉरी, और लायबिलिटी है तो फिर आई थिंक सब अलग होते हैं सागर, सब अपने हिसाब से अच्छे होते हैं। जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में हो तो तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे हो। शायद तुम किसी और के लिए अच्छे हो, वो किसी और के लिए अच्छी। सब अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें ढूंढना पड़ता है कि तुम्हारे लिए कौन अच्छा है। दैट इज द पॉइंट ऑफ द रिलेशनशिप। सो अगर तुम किसी से इतना अफेक्ट हो रहे हो तो इतना यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ गेटिंग डी अटैच वाइल गेटिंग अटैच्ड। ये तुम लोगों ने सुना है या नहीं मुझे नहीं पता, ये एक आर्ट होता है कि तुम किसी से अटैच भी हो, साथ साथ उसकी बातों से या उसकी हरकतों से डी अटैच हो। ये आर्ट अगर सबको आ गया ना, लाइफ में ना कोई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम जाएगी, ना कोई काम में प्रॉब्लम जाएगी, ना कोई किसी चीज में प्रॉब्लम जाएगी। एक आर्ट है। सो ऑफ कोर्स आई एम एनएलपी ट्रेनर, तो इट टेक्स होल लॉट ऑफ मेहनत टू लर्न दिस आर्ट। बट फिलहाल तो मैं वो आर्ट नहीं सिखा सकती। फिलहाल तो मैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल सिखा सकती हूँ। विल पावर कैसे बढ़ाना है, छोटी छोटी चीजें डिसाइड कीजिए। आज के दिन में 10 पेज पढ़ूंगा एंड मेक श्योर यू डू इट। ये अगर आपको कुछ खाने का मन करे, समझो चॉकलेट है, छोटी चीज, मेरे को नहीं खाना है आज ये चॉकलेट, एटलीस्ट 2 days आई विल नॉट ईट दिस चॉकलेट, एंड ट्राई टू डू दैट एंड यू विल अकम्प्लिश इट फॉर श्योर। क्योंकि आप छोटी छोटी चीजें कर रहे हो तो ये ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर आप छोटी छोटी चीजों में विल पावर स्ट्रांग रखोगे ना, यू ट्रस्ट मी, आगे जाके इतनी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई कुछ भी करेगा आपको कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। मुझे ये करना है, मैं ये जानता हूँ। आप स्ट्रांग रहोगे अपने बातों में, बोलते हैं ना स्टैंड लोगे कि आई हैव टू डू इट। सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, स्मॉल स्मॉल गोल्स बनाओ, स्मॉल स्मॉल चीजें जो बोलो कि नहीं अभी मैं 2 दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, एंड ट्राई टू डू इट। 2 days ना, जिंदगी भर तो नहीं बोला है। तो छोटी छोटी चीजों में अपना विल पावर स्ट्रांग बनाओ, इट विल चेंज योर लाइफ। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, ये बहुत अच्छा है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल्स के लिए प्रोएक्टिव बनना है कि रिएक्टिव बनना है? कौन मुझे इसका डिफरेंस बोलेगा? व्हाट इज प्रोएक्टिव एंड व्हाट इज रिएक्टिव?
Who will tell me the difference? Harsha, can you tell me the difference between proactive and reactive? Yes, ma'am. Proactive in the sense you have to be ready for your what you have did and all that. Reactive, अगर कुछ हो गया तो उसके बाद you have to react. Okay. Anyone else? JS? JS. अब जो लिखा है मैं वही बोलूंगी. Yes, ma'am. Priksh. Yeah. What is proactive and reactive? Ma'am, reactive means you react suddenly without thinking, and proactive means controlling your thoughts, and after thinking what is it is beneficial for me to react on the thing or not. That is called, Perfect. आप proactive हो reactive हो? ma'am, both. Sometimes proactive, sometimes reactive. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मेरे साथ जो हुआ था, मैंने एक प्लांट उगाया था एंड मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम प्लांट उगाया था. तो मेरे को तो एकदम ऐसे एक्साइटमेंट था, ओह माय प्लांट, आई विल पैम्पर दैट प्लांट, आई विल कीप दैट प्लांट लाइक माय बेबी. फर्स्ट प्लांट होता है ना, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है. एंड वो प्लांट किसी ने उखाड़ दिया एंड आई गॉट मैड मतलब मैं आपको बता नहीं सकती. मैं इतना, आई एम एनएलपी ट्रेनर. अब मुझे गुस्सा तो है, पर मैं क्या रिएक्ट करूं, क्या वो, दैट इज द मोमेंट ऑफ टेस्ट, हाउ यू डू. And I was like, how someone can touch my plant, how who did that. And मुझे इतने questions, इतना emotions बाहर आ रहा था. I was like, what should I do, what should I not do. I calmed myself, I took a deep breath and I used my technique, which एक दो technique मैं आप लोग को भी दूंगी. And I used my technique and I was like कि I took the phone, Amazon में मैंने 2 plant और order कर दिए. Okay. Nothing else. That is proactive. And reactive, I could have shout, I could have called people, I could have do an investigation, किसने क्या किया है, किसने, हालांकि मैंने पता लगाया किसने किया है, but in a very calm way. And I made sure कि I don't shout, and I made sure कि मैं कुछ बोलूं नहीं. And I इसलिए पता लगा कि next time मैं ध्यान रखूं मेरे और जो 2 plant आएंगे कि मुझे क्या करना है. So please and please become, if you become proactive in the situation, trust me, your maturity increases, your value increases at home, your reliability increases, everything increases. तो कोई भी situation होती है, take a deep breath, then talk. आप इधर बहुत बातें कर सकते हो, पर जरूरी नहीं आप मुंह से भी बातें निकालो. मुंह से बातें निकालने से पहले प्लीज 5-10 सेकेंड एक टेक्निक यूज कर लो जो मैं आपको देती हूँ. I'll give you one technique which you all can use. This technique, WIBT, who does it belong to, return it to the sender. आप, हम सब एक यूनिवर्स में, हम एक स्पॉन्ज की तरह हैं. हमने यूनिवर्स से सारी नेगेटिव, पॉजिटिव, गुस्सा, लव, एवरीथिंग हमने ऑब्जर्व किया. हमें पता नहीं हमने कहाँ से किए. जैसे आप लोग, कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मैं तो बचपन से शाई हूँ, यार मेरे तो बचपन से ही कम मार्क्स आते हैं, मेरे पापा भी कम पढ़ते थे ना, फिर इसलिए वजह से थोड़ा बहुत मेरा भी एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं. या फिर समवन विल से कि नो आई हैव वेरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई कैन नॉट टॉक, मेरे मम्मी पापा नहीं बात कर सकते किसी के आगे, वैसे ही मेरे अंदर है. हम ब्लेम कर देते हैं. तो आप मुझे एक बात बताओ, आप जब पैदा हुए थे तो डॉक्टर ने बोला था बधाई हो, एक इंट्रोवर्ट बच्चा पैदा हुआ है, या बधाई हो इस बच्चे में बहुत गुस्सा होने वाला है. तो आपकी जीन्स में है ना, मम्मी पापा से है ना आपका गुस्सा, तो वो लिखा क्यों नहीं है फिर सर्टिफिकेट में. सो इट्स नॉट इन योर जीन्स. ये आपके मम्मी पापा से नहीं आई है, ये सब क्वालिटी, ये सब आपने विद टाइम डेवलप की है बाय द यूनिवर्स एंड एवरीवन से. सो प्लीज एंड प्लीज, दिस इज अ टेक्निक. आपको क्या करना है, आपको जब भी गुस्सा आए, रॉन्ग इमोशन आए, या फिर आपको किसी बात का बहुत बुरा लगे और आपके थॉट्स बहुत चल रहे हैं, आप सबको बोलना है हु डज इट बिलोंग टू, रिटर्न इट टू द सेंडर. ये इमोशन किसको बिलोंग करता है, प्लीज उसको वापस भेज दो, मुझे नहीं चाहिए. तो जब वो प्लांट उखड़ा और मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मुझे लगा ये गुस्सा मेरा नहीं है नेहा, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. तो मैंने बोला किसको बिलोंग करता है, वापस भेज दो. ये गुस्सा किसको बिलोंग करता है, वापस भेज दो. ये गुस्सा शायद स्टार्टिंग में आपको 15 बार यूज करना पड़े, आज के डेट में मैं 1 बार यूज करती हूँ एंड इट वर्क्स. दिस इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज कि अगर मैं चैट में भी सबके लिए लिख देती हूँ ये वाला सेंटेंस, so that everyone will know who does it
belong to, return it to the sender. ये है सेंटेंस, साइंटिफिक सेंटेंस जो आप सबको यूज करना है कि कभी भी आपको गुस्सा है, नेगेटिव इमोशन है, किसी के लिए नेगेटिव बातें आए, ओवर थिंकिंग हो, आप तुरंत यूज करो एंड इट वैनिश लाइक अ मैजिक. सो यू विल यूज इट. प्लीज रेज योर हैंड इफ यू यूज इट. अगर आपका वीडियो ऑन है तो आप किसी और तरीके से मुझे बता सकते हैं. या सागर विल यूज इट, जतिन विल यूज इट, परिमल विल, जय विल यूज इट, दिव्या, धनेश्वर, okay, rest of the people, Harsha will use it. So please and please, JS will use it, Preksha will use it. आप सब इसको यूज करो. और अगर आपको बाई चांस भी लगता है कि इससे चेंज नहीं हुआ मैम, तो आई एम देयर इन इंस्टाग्राम, दैट इज शेड्स ऑफ लाइफ. वेट, वो रॉन्ग है. मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी लिखा है शेड्स ऑफ लाइफ. आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो और ये सॉर्ट आउट नहीं किया इस टेक्निक ने, तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी एंड आस्क मी कि मैम दिस इज नॉट I वर्किंग. have one question. या Ma'am, while studying, there is so much thoughts come in the mind about the person, negative thoughts about the person. So how will I control these type of thoughts about the negative thoughts about the person? Yes, यही नेगेटिव थॉट्स person- आपके नहीं है, तो हु डज इट बिलोंग टू. रिटर्न नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स नहीं होते, वो आपके अंदर नेगेटिविटी होती है जो आपको नेगेटिव थॉट्स देती है. तो आपको नेगेटिविटी को वापस भेजना है. हु डज इट बिलोंग टू. इतना नेगेटिविटी किसको बिलोंग करता है, वापस भेज दो. इतना नेगेटिविटी किसको बिलोंग करता है, वापस भेज दो. इतना नेगेटिविटी किसको बिलोंग करता है, वापस भेज दो. आपको ये 15 बार यूज करना है. शायद स्टार्टिंग में 20 बार भी यूज करना पड़े, पर आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे इसके बाद कि आप एक बार में इट वर्क्स. तो यूज इट. दैट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रांग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि आप अपने इमोशंस, एवरीथिंग आप खुद कंट्रोल कर सकते हो. तो दैट विल गिव यू इमेंस पावर कि yes, now I know how to control my thoughts. Fine. Okay, ma'am, thanks. Share क्यों नहीं हो रही स्क्रीन? Okay. Fine. ये है keep privileges to yourself. You know, ये हैप्पी होना, सैड होना, एंग्री होना, फ्रस्ट्रेट होना, नेगेटिविटी थॉट्स आना, ये सब किसी और के वजह से. ये सब प्रिविलेज मैंने किसी को लाइफ में दिया ही नहीं कि वो मुझे गुस्सा कर सके, वो मुझे एंग्री कर सके, वो मुझे फ्रस्ट्रेट कर सके. ये सब मेरे खुद के प्रिविलेजेस है. तो अगर आप ये सोचोगे कि मैंने किसी को इतना, यू नो व्हाट इज दैट वर्ड, मैंने किसी को इतना, प्रिविलेज को और क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? Power, something like power. पावर नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने किसी को इतना, कम ऑन हेल्प मी, मैं ही टीचर हूँ. हाँ विनोद. Vinod. महत्व. अधिकार मैम, अधिकार. हाँ, अधिकार इज वन ऑफ द वर्ड. उससे भी बेटर वर्ड, मैंने किसी को इतना अधिकार ही नहीं दिया कि वो मुझे गुस्सा करे, वो मुझे फ्रस्ट्रेट करे, वो मुझे इरिटेट करे. अधिकार से भी प्रिविलेज. प्रिविलेज को हिंदी में क्या बोलते? सब इंग्लिश वाले क्या इधर? और किसी को नहीं पता प्रिविलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैम विशेषाधिकार. सौभाग्य. ओके. विशेष अधिकार. या दिव्या? Right, सौभाग्य. मतलब in English. सौभाग्य. आई लव दिस वर्ड. ओके. मैंने किसी को इतना सौभाग्य ही नहीं दिया है कि मैं, कोई मुझे गुस्सा करे, कोई मुझे फ्रस्ट्रेट करे, या कोई मुझे इरिटेट करे. एवरीथिंग इज इन माय ओन हैंड. इफ यू आर लाइक दैट, ट्रस्ट मी, थिंग्स विल चेंज फॉर यू. सो डोंट गिव दिस प्रिविलेज टू एनीवन इन योर लाइफ. ओके. अब मेरे को तुम लोग में से कोई बताओगे जो अभी तक है ना बोला नहीं है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ मी. मैं नींबू पानी बना रही थी एंड आई वाज टॉकिंग ऑन फोन, एंड भूल से मेरे से वो नींबू पानी में 5 चम्मच चीनी डल गई. अब मैं क्या करूं? रेज योर हैंड. उत्सवी ने एक बार भी नहीं बोला है. उत्सवी? उत्सवी? यस मैम. हाँ, आप क्या करोगे? वो Yes, 5 ma'am. चम्मच चीनी डल गई. आप फोन पे बात कर रहे थे, नींबू पानी बना रही थी मैं क्या करूं? तो फिर नींबू ज्यादा डालने का, मतलब अच्छा, तो ज्यादा क्या नींबू का रस ज्यादा डाल. फिर? 5 चम्मच चीनी पी जाओ. 5 चम्मच नींबू, 5 चम्मच फिर चीनी. नींबू कम हो तो ज्यादा डालने का नींबू, मतलब खट्टा और मीठे का लेवल सेम हो उत्सवी, जाएगा. आपका कनेक्शन कट रहा है.
खट्टा मीठे का लेवल सेम हो जाएगा, पर एक गिलास में 5 चम्मच चीनी में 5 चम्मच चीनी पीऊंगी तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी। हाँ, तो फेंक देने का। फेक, ओ वाओ व्हाट अ स्किल्स, फेक देती हूँ। दिव्या आप क्या बोलते हो, मेरे को क्या करना चाहिए? दिव्या जैन। हम ज्यादा बना देने का, पानी या नींबू दोनों ही ज्यादा डाल देने का। फिर मैम कैन आई से 1 मिनट या फिर फिर क्या, लाइक आसपास जो भी हो उनको सबको भी दे दो। सब लोग फ्री में पियो नींबू पानी, है ना? सही है। हाँ हर्षा, क्या करना चाहिए मुझे? मैम दिव्या said the same thing, make it more and share with everyone. पर कौन है एवरीवन? कोरोना में कौन पिएगा मेरे साथ? मैम घर वाले है ना। कौन है घर में? तुम्हें कहाँ बताया मैंने कि मैं घर में अकेली हूँ या लोग है? नहीं बस। ओ आरके ने लिखा है स्टोर कर लो उसको। ओके इंटरेस्टिंग। खराब हो और गया तो फिर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे तो। काम नहीं जिंदगी में आप नींबू पानी पियोगे नहीं, ऐसा दिव्या? स्टोर करोगी? क्या करोगी मैम? नींबू पानी पी लिया मैम, एक बार पीना था लाइफ में। नहीं मैम ऐसा नहीं। अक्षत ने बोला अगर भगवान का ज्यादा प्रसाद देर बोल के सबको बांट दो। वाओ ग्रेट आइडियाज। ओके दूसरा बना लेना, उसको छोड़ दो। फेंक दूं मैं? हाँ So you see, so everyone has a different quality of solving a problem. Of course, I can make more नींबू पानी and मैं आजू बाजू में नहीं तो मैं सर्वेंट्स को बांट सकती हूँ। यू नो पीपल हु कम टू माय होम, वो लोग ऑलरेडी उनको कोई कुछ देता नहीं है, तो यू कैन गिव देम एंड शेयर इट। तो प्रॉब्लम तो आपके लाइफ में आएगी। हम लोग क्या करते हैं जब किसी और के लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, वी आर वेरी इजी टू सजेस्ट। नहीं नहीं तुझे ऐसा नहीं ऐसा बोलना, हाँ ये नहीं तू ये करना, देखना पक्का वो है ना सामने वाला ऐसा रिप्लाई करेगा। और खुद के में प्रॉब्लम आती तो वी आर लाइक जीरो, मुझे कुछ नहीं पता क्या करना चाहिए। तो यू ऑल शुड डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए इंस्टेड ऑफ बैठ के उसके लिए रोना चाहिए। एग्जाम में अगर बाई चांस यू फ्लंक तो यू जस्ट सिट एंड क्राई, उससे क्या होगा? प्रॉब्लम है ना, सॉर्ट करो, अगली बार ज्यादा पढ़ लेना, ज्यादा है ना फैकल्टीज से हेल्प ले लो, पूछ लो, देख लो आपको कहाँ कमी आ रही है, ज्यादा मॉक टेस्ट अटेंड कर लो। सो प्रॉब्लम ये भी देखो, एक प्रॉब्लम का कितने छोटी सी फालतू सी प्रॉब्लम का भी इतने सॉल्यूशंस थे, तो बड़ी प्रॉब्लम के तो सोचो कितने सॉल्यूशंस होंगे। सो आस्क, कभी भी अगर आप दीवार में फोटो फ्रेम लगाने जा रहे हो तो आप 4 लोगों से पूछ लो कि मैं हथौड़ी कैसे लगाऊं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। शायद उसमें से एक ऐसा हो जो आपकी बिना हथौड़ी लगाए आपका काम बना दे। आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप 4 लोगों से कंसल्ट करते हो, सजेशन लेते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। शायद उसमें से कोई आपको ऐसा सोल्यूशन दे दे जो बहुत यूनिक हो। अभी मुझे कितना सोल्यूशन मिला, फेंकने वाला तो मैं यूज जरूर कंफर्म नहीं करूंगी। सो आई माइट सर्व पीपल। तो इट्स ऑन यू, आप कौन सा सोल्यूशन लोगे कौन सा नहीं लोगे। तो बट प्लीज डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रादर देन क्राइंग। ओके द लास्ट है शायद ये स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी। मैं चाहती हूँ सब करें। आप सबको मैं एक मस्त एक्टिविटी दिखाती हूँ, जब आपको स्ट्रेस है तो आपको क्या करना है, ठीक है? सो एवरीबॉडी ऑफ यू प्लीज स्टैंड। ठीक है चलो बैठे बैठे कर लो, मुझे पता है तुम सबको बहुत आलस आएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत थके हुए होगे तुम लोग। फाइन, सो कैन यू प्लीज ऑन योर वीडियो पीपल। इट्स अ स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी। सब ऐसे लेटे बैठे, सब ऐसे बैठ तो जाओ यार, इतना तो बनता है। फाइन, every one of you please close your eyes. Okay, take a deep breath, breathe in, breathe out, good in, bad out. आपकी प्रॉब्लम का आप ऐसे होल्ड करो, सब ओपन योर आईज एंड सी मी, जस्ट होल्ड योर प्रॉब्लम लाइक दैट। चाहे वो कोई इंसान हो तो उसकी फेस यू कैन होल्ड इट, और अगर कोई बात हो तो वो बात को यू कैन होल्ड इट, अगर वो इंस्टीट्यूट हो तो इंस्टीट्यूट को नहीं बोलना चाहिए मुझे, अगर वो कोई और चीज हो तो यू कैन होल्ड एनी प्रॉब्लम, जस्ट होल्ड योर प्रॉब्लम लाइक दिस। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को आप क्रश करो, पहले दबा दो उस प्रॉब्लम को, फिर क्रश करो एंड फिर फेंक दो। You know, you feel so relieved. Then now again take a deep breath, breathe in,
ब्रीथ आउट। सो आपको अगर लगता है जब भी मेट में जो है वो बच्चों जैसा है ये सब करना, तो इट्स अ टेक्निक, इट एक्चुअली वर्क्स। सो इफ समवन इज टॉकिंग टू यू एंड आपको उससे बहुत प्रॉब्लम है, तो आप चुपचाप नीचे धीरे से उसका सर पकड़े, क्रश करे, फेंक दो और उससे बात करें, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, नो यू शुड गो ऑन। सो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा आपको कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। सो जो प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं कर सकते उसको प्लीज क्रश करके फेंक दो अपनी लाइफ से, and you will feel better about it. You can actually try it when you are alone. If you have problem with someone, you can hold their head. If you have problem with some bath, you can hold that bath. Anything you can hold and just crush their problem and throw it. Okay. This I want all of you to do it. किसको किसको अच्छा लगता है लोग आपकी तारीफ करें तो? Can you raise your hand? तारीफ नहीं पसंद, ठीक है, फाइन। What? मैंने कुछ नहीं पूछ रही हूँ। हाँ धनेश्वर, फाइन, थैंक यू। प्लीज रेज योर हैंड, किसको किसको अच्छा लगता है। तारीफ वर्ड से स्माइल आ रही, तारीफ से तो कितनी आएगी। हाँ जतिन, धीरे, व्हाट इज दिस, इसमें क्या हुआ सभी? ओके फाइन, ओके परिमल फाइन, हाँ दिव्या, हाँ खुशी, धीरे से रियलाइज होता है क्या आपको कि हाँ 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 मुझे तारीफ पसंद है। हाँ अक्षत, मैम अप्रिशिएशन तो सबको ही पसंद है। सबको पसंद है, यू कैन से दैट। ये एक अगेन बहुत लंबा फंडा है, जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। आपको पसंद है या नहीं वो सब मैं आपको कभी और बताऊंगी। जो सच हो, ओ माय गॉड प्रेक्षा ने कहा जो सच हो वो तारीफ पसंद है। तारीफ करने से पहले भी सोचे इंसान, भाई सच होना चाहिए। तारीफ होती डर लगता है मैम कि अब ये कुछ मांगने वाला है क्या, क्या है कि मेरी तारीफ कर रहा है अभी। इंटेंशन ऐसा इंटेंशन है कि तारीफ कर रहा है, मतलब कुछ मांगने वाला है कि क्या है। फाइन, दिस ऑल आर माइंड गेम्स। ठीक है, तो हम एक टेक्निक सीखेंगे इनकैंटेशन, जिसमें हम अपनी तारीफ खुद करेंगे। ये एक एक्टिविटी है जो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स खुद करते हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग दे गेट अप एंड दे टेल फ्यू लाइन्स। आई चूज टू बी बिलियनर, आई चूज टू बी ऑसम, आई चूज दैट माई डे विल गो ग्रेट, आई चूज टू बी ग्रेट इन माई मीटिंग्स। सो वो लोग ये लाइन्स यूज करते हैं, दे रिपीट द लाइन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो लाइक ये सेशन होने वाला था तो मैंने बोला था मेरा सेशन बहुत अच्छा जाएगा, आई विल रॉक इट, इट विल बी द बेस्ट सेशन इन द वर्ल्ड। मैं आग भी लगा दूंगी। आप लोग को बता रही हूँ मैं, इनकैंटेशन इस लेवल का होना चाहिए कि दैट विल मोटिवेट यू एंड ब्रिंग फायर इनसाइड यू। एंड इफ यू डू इट एवरी डे, एंटरप्रेन्योर्स तो बनने के बाद उनको शायद टेक्निक मिली होगी या उससे थोड़ा टाइम पहले, अगर आप लोग को अभी से मिलती है, माई एग्जाम्स विल गो ऑसम, नो वन कैन बीट मी इन द एग्जाम्स। इस बार तो मैं गारंटी बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। सो इफ यू डू इट डेली, इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। तो प्लीज एंड प्लीज, अभी सबका म्यूट है तो आप इनकैंटेशन कर सकते हैं, आपको कोई सुनेगा नहीं। सो यू कैन जस्ट शाउट एंड टेल योर सेल्फ यू आई एम द बेस्ट। आई वॉन्ट यू टू डू इट राइट नाउ। लिपसिंग में पढ़ सकती हूँ। प्लीज शाउट एंड टेल आई एम द बेस्ट, I can do anything in the world, I will get great marks in the exam, I am unstoppable, and I'm awesome. So I request every one of you to do this technique of incantation daily, so that you'll be motivated daily and you can help yourself daily. And it works. Trust me, everything works. Now I want to ask you, any one of you have any question? किसी को कोई क्वेश्चन है? अब पूछो। Come on, कोई क्वेश्चन नहीं किसी को? Yes, हर्षा। Ma'am, I would like to ask that I have just came through with this many times. Ki everything happens with law of karma. But if everything is decided, then what is the role of a person and his deeds? And if there is a possibility that we can change, then what is the meaning of karma or pre and past birth deeds? And how can you control with karma? Okay, तो ये बहुत बड़ा controversial question है between the science and spirituality. So अभी तक कुछ किसी का फाइनल नहीं, मतलब you don't have a proof
कि ये ऐसा ही होता है, ये वैसा ही होता है। अगर कर्म एक्चुअल में होता है तो इतना सोच लो, भगवान भी आजकल वेट नहीं करता है। आपको इस कर्म का भुगतना सब इसी कर्म में है। अगर आपने इस कर्म में इस जन्म में गंदे कर्म किए तो आपको इसी जन्म में भुगतना है। सो मेक श्योर कि वॉट एवर इट इज, यू आर राइट, यू आर डूइंग गुड। अगर आप कर्मा में भी बिलीव करते हो तो आप खुद को तो पहले आपको अच्छा करना पड़ेगा, और आप नहीं भी बिलीव करते हो तो ऐसे भी अच्छा करो ना लाइफ में, ऐसे भी खुद रिस्पॉन्सिबल बनो ना अपनी लाइफ के। तो आप चाहे बिलीव करते हो चाहे नहीं बिलीव करते, वो सब सेकेंडरी है। यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग इन योर लाइफ। यू नेवर नो व्हेन थिंग्स चेंज। Okay, ma'am. Thank you. एनीवन एल्स? और किसी को कोई क्वेश्चन है? आप टाइप भी कर सकते हैं, मैं आपका बिना नाम पूछे भी बता सकती हूँ क्वेश्चन, आंसर दे सकते हो। अगर किसी को ऐसा लगे कि आई कैन नॉट स्पीक तो यू कैन टाइप इट। ओके, सो यू ऑल विल फॉलो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने लाइफ की। प्लीज रेज योर हैंड। विल यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ? थैंक यू दिव्या, थैंक यू जतिन, थैंक यू धनेश्वर, अक्षत, प्रेक्षा, जीनल, विनोद, खुशी, परिमल परमार, सागर। Thank you so much for taking responsibility of your own life. Trust me. Thank you Jay. Trust me. इतना ज्यादा powerful feel होता है ना when you say it ना, I have done it. मेरी वजह से हुआ है, मैं इसको ठीक करूंगा, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। You feel so powerful and so confident. आप बोलते हो ना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो अपने लाइफ की। आप अपने आप इतने कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि सामने वाला भी शॉक हो जाएगा कि क्या हुआ ऐसा। Just take responsibility of every damn thing in your life. अपने इसी चीज से सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड फिर no one can break you, no one can affect you, no one can do anything. आप इतने I always tell myself I'm so strong here कि no one can mess with me. How to long time remember in study? मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी ने मुझे पूछा है स्टडी की चीजें कैसे याद रखे, तो मैं ऐसा मानती हूँ चीजों को समझो। याद करने के लिए पढ़ोगे ना, मुझे नहीं याद रहता है ऑनेस्टली। आई एम नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ, पर मेरा CS में 26th रैंक आया था इंडिया में, एंड सॉरी 23rd। ओके, एंड अभी तक मुझे याद नहीं मैंने कब रट्टा मारा या क्या किया। आई हार्डली स्टडीड फॉर 2-3 months आई गेस। आप समझोगे ना चीजों को, जैसा भी मैंने जो बोला, आप सिर्फ समझो, अपने आप थिंग्स फॉल इन प्लेस। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है कुछ। जस्ट अंडरस्टैंड इट कि एक्चुअल में है क्या वो। क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना, जिस चीज की क्यूरियोसिटी आप कितने ध्यान से देखते हो, ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते नहीं हो ऑब्वियसली, आपको पढ़ाई में तो क्यूरियोसिटी हो ही नहीं सकती। तो कितने ध्यान से वो चीजों को सुनते हो, कोई दोस्त की बात हो, कोई कुछ गॉसिप हो, या कोई किसी के गैजेट्स आया है कोई नया, अगर उतनी ही पढ़ाई में क्यूरियोसिटी लाओगे ना, आपको कोई भूल के भी भुला नहीं सकता पढ़ाई की चीजें। जस्ट ब्रिंग दैट क्यूरियोसिटी एंड सब चीजें समझो, सब याद हो जाएगी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अगर आगे भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी इन इंस्टाग्राम। मैं अगेन टाइप कर रही हूँ Shades of Life. You can follow me and you can contact me there. I am there to solve your problem. I am there to help you forever. So I am gonna help you. Thank you Utsavi. I hope you all enjoyed the session. I hope आप सबने कुछ सीखा, कुछ मजे किए, कुछ फन किया, and I hope we will meet again and again. Beautiful session. Thank you so much Harsha. Thank you. मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सबने मेरी बात सुनी, कुछ लोगों ने वीडियो भी ऑन किया। ग्रेट सेशन जतिन, थैंक यू जतिन सो मच। I like to hear such things. तारीफ। Okay. So if there is anything to improve, you can always tell me. I'm always ready to improve. You know, every day I want to develop myself. Hitesh, thank you so much. Wonderful session, ma'am. Thank you so much, Hitesh. Jinal, yeah, thank you. Welcome, Jinal. So please, if there anything you want, Jatin, you rocked, ma'am. Thank you so much. If anything you want me to tell you, या फिर you want me to improve, या you want me to change, you can always tell me. Parimal, thank you, ma'am. Thank you so much, everyone, for loving me so much. And इतना अच्छा सेशन के लिए अगर आप वीडियोस ऑन करोगे तो एक फोटो हो जाए हम सबकी। प्लीज इफ यू कैन ऑन योर वीडियो, फोटो के लिए तो ऑन कर लो।
थैंक यू फोटो के लिए ऑन करने के। ओह सो स्वीट। और कुछ नहीं तो फोटो के लिए तो Thank ऑन you. किया। नीचे वाले अभी तक ऑन है, नीचे वाले अभी तक, आई मीन सम पीपल अभी तो ऑन कर लो 1 सेकेंड के लिए फोटो के लिए। विनोद, सागर, प्रेक्षा, जय कहाँ गया? ओके सागर, ओके सागर ने ऑन किया है। ओके ओके से क्या बोलना है? स्माइल चीज क्या करना है? ओके स्माइल, that's it. You all can do like this so that it will be seen. Thank you so much guys. Okay मेरा सेशन ओवर हो गया है। खुशी हो गई। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was such an interactive session, and ऐसा feel हो रहा है कि baggage था जो अब नहीं है. Now, I would request our esteemed volunteer, who is so eager to give you a vote of thanks. Harsha, please take it from here. Yes. Good afternoon, everyone. I am here to deliver the vote of thanks on behalf of Ahmedabad branch of Vikasa towards today's session. Thank you, Neha ma'am, for your valuable time to enhance our knowledge. Today's session surely going to be so helpful to all of us. I personally like the tasks, those techniques of stress relief, paper tasks, and incantation, which will work as a relief task when we are in difficult situations. Thanks to Fanil sir, Anjali ma'am, and Harit sir for arranging such sessions for benefit of the students. Thanks to all coordinators and audience for your attention here. At last, I would like to quote that all in all, if you have positive frame of mind, you can manifest the positive things in your life. Thank you. थैंक यू सो मच। बाय बाय, बी इन टच। सब बताते रहना आप लोग ने लाइफ में क्या किया, कैसे हुआ, क्या हुआ। आई एम देयर टू हियर। आई लव हियरिंग ऑल ऑफ यू। बाय Bye. Thank Thank you you, so ma'am. much, ma'am. Thank you so much, ma'am. वेलकम। बाय बाय।